میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، اگر پاکستان میں غالب پر فلمیں اور ڈرامے نہ بنتے تو کسی سرکاری افسر، امیر، کبیر، سفیر، وزیر کو یہ ہرگز علم نہ ہوتا کہ اسد اللہ کون ہے. بتائیے، یہ لالٹین کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ تقریر لکھو اور وہ بھی غالب پر. بھائی مگر غالب بھی لالٹین کی روشنی میں لکھتے تھے. انہوں نے تو کسی شعر میں لالٹین کی کمپلین نہیں کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کسی سرکاری افسر کے لیے تقریر کیوں لکھوں؟ ہاں دیکھیے، آپ ایک سرکاری افسر ہیں. سرکار جو بھی حکم کرے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے بجا لائیں. ہاں، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ بجا لائیں. ایک بات سنیے، جی، انسان کی جو چیز کمزور ہو اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اردو کافی کمزور ہے، پھر کیوں دن میں 10-15 مرتبہ آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ سنیے، میری اردو کمزور ہے. ہمارا سن 47 میں آپ پاکستان، سن 47 میں میں پاکستان آیا. ہم دونوں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، ایک ہی جگہ پڑھے لکھے، تو پھر میری اردو کمزور کیسے ہو سکتی؟ میرے والد صاحب پڑھاتے تھے اور آپ کے والد صاحب نے خود نہیں پڑھا. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ادبی ورثے کا دفتر ہے، مجھے کام کرنے دیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ بھائی وہ میں اپنے بیٹے کا ہوم ورک کر رہا ہوں. وہ خالی جگہ پر کرو، مگر ایک لائن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھ میں آج کچھ طبیعت بھی مائل نہیں ہے اس طرف. سنو، اگر دفتر کے اوقات ختم ہونے سے پہلے اگر تم نہ رہے اور میں رہا تو میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ اس جگہ کو میں پر کر دوں گا. اصل میں ایک لائن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صادقین بہت پر ڈیش تصویریں بناتے تھے. پھر سے پڑھنا. صادقین بہت پر ڈیش تصویریں بناتے تھے. تم ڈیش میں پر لکھ دو. یہ کیا بات ہوئی کہ صادقین بہت پر تصویریں بناتے تھے؟ ہمیں اس میں کیا بات ہے؟ دیکھو، پر کا مطلب ہے جلدی جلدی ہے. کیا جلدی جلدی؟ اب یہ پر کا مطلب جلدی جلدی کس لغت میں ہے؟ یہ چھٹن لال بہاری کی لغت میں. چھٹن لال بہاری؟ یہ نام تو آج میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. وہ اس لیے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ یہ نام میں نے پہلی دفعہ سوچا. خواجہ سر، خواجہ سر آ گئے. خواجہ سر، شاکر صاحب، شاکر صاحب، غالب پر تقریر لکھتے وقت سیٹی نہیں بجاتا ہے. صحیح بات ہے. غالب پہ تقریر لکھتے وقت سیٹی نہیں بجاتے ہیں، لیکن آئے آئے اس وقت ہم جو ہیں صرف سیٹی بجا رہے تھے، تقریر نہیں لکھ رہے تھے. سنیے، یہ ایک سرکاری دفتر ہے، سرکاری ادارہ ہے. جی جی. اور آپ ایک سرکاری افسر جی جی. ہے نا؟ جی جی. یہ بیٹھے کس طرح ہیں؟ کون؟ ارے میں کیسے بیٹھے ہیں کرسی پر آپ؟ تو کیسے بیٹھے؟ ارے ٹھیک سے بیٹھے نا. اس پہ بیٹھ کے دکھائیے. بیٹھیے، اس پہ بیٹھ کے دکھائیے. ایک تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ ہر مہینے آپ کی کرسی ہی کیوں ٹوٹتی ہے. ارے صاحب، دماغ پر زور دے کر لکھا کریں، کرسی پر زور دے کر کیوں لکھتے ہیں؟ ان سب کی کرسیاں تو نہیں ٹوٹتی. ان سب کی کرسیاں اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ ان لوگوں میں صلاحیتوں کا فقدان ہے. فقدان جانتے ہیں آپ؟ اچھا بس فضول کی باتیں نہ کریں ہم سے. یہ تقریر فوراً لکھ کر ہم کو دے دیں. شام تک ہم کو وزارت فوراً جی کلچر، منسٹری آف کلچر کو بھجوانے ہیں. شام تک؟ ہاں شام تک. شام تک اگر ہم 7 8 6 بھی لکھ دینا تو سمجھ لیجئے بہت بڑی بات ہے. ہے؟ ہم غالب کے بارے میں کچھ نہیں ارے صاحب، آپ نے تو غالب پر کتاب لکھ رکھی ہے. وہ کیا نام تھا اس کتاب کا بھائی؟ جی وہ غالب اور حقیقت. غالب اور حقیقت کتاب لکھی ہے نا پوری آپ؟ جی. کس نے؟ آپ نے. ارے کوئی تو کہا تھا آپ نے. اس میں نہ غالب تھا اور نہ حقیقت. 200 چھپوائی تھی. 200 چھپوائی تھی. ایک بکی، وہ بھی داماد نے خریدی. باقی جمعہ بازار میں
नाम बदल के फरोख्त की। किस नाम से फरोख्त की थी? अदब में सुंडियों से नजात का तरीका। साहब ये आप हंस काहे के लिए रहे हैं? जोक सर, जोक। गालिब का जोक पढ़ रहा था सर। कौन सी किताब दिखाई आपने? ये कुल्लियात सौदा है अरे, सर। कुल्लियात सौदा में गालिब पर जोक। जी सर, इस दफ्तर में सब कुछ हो सकता है सर। लगता है आप लोगों से तो हमको गोल्डन शेक हैंड करना ही पड़ेगा। हमसे तो खाली आप गोल्डन कीजिए, हैंडशेक तो हम आपसे करेंगे नहीं। क्यों? सफाई निस्सीमान होती है और खिलाल शुदा हाथ से हम हैंडशेक नहीं करते। अच्छा बाबा, फजूल किस्म की बातें ना करें हमसे। तकरीर लिखी है शाम को, हमें भिजवानी है, वो वजारत दाखिला क्या कल्चर वजारत कल्चर को भिजवानी है हमको। सुभान अल्लाह, क्या खावा खरगोश के मजे मिल रहे हैं। मुहतरमा शाइस्ता साहिबा, अरे साहब ये हम हैं ख्वाजा, और ये सरकारी दफ्तर है, आपकी ख्वाबगाह नहीं है। मैं अल्लामा इकबाल का ख्वाब दोबारा देख रही थी, पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा था। अब आपको तो गालिब की शायरी पर मजमून लिखना था ना। शर्म का मुकाम है सर, कल मैं किताबें ढूंढने बाजार गई, अमजद इस्लाम अमजद की शायरी की 10 किताबें मिल गई, अताउल्लाह काज़मी की शायरी की 12 किताबें, अहमद फराज की 7, फैज अहमद फैज की 8 और किश्वर नाहिद की 6 किताबें, और गालिब की शायरी की सिर्फ 1 किताब। जिस मुल्क की सरकारी जबान उर्दू हो, उस मुल्क में गालिब की शायरी की सिर्फ 1 किताब। मैं तो शर्म से आधी डूब गई थी दुकान में। शर्म का मुकाम। हमारे लिए है ने आपको मुलाजिम जो रख लिया था। अरे साहब, गालिब ने एक ही किताब लिखी थी, तो उनका जश्न क्यों मना रहे हैं? ऊपर से लेटर जो आ गया है, हमें शौक है क्या? लतीफ साहब, लतीफ साहब, साहब आपको तो गालिब की नस्ल पे मजमून लिखना था ना। जी वो चपरासी लिख रहा है। चपरासी लिख रहा था। वो बात यह है कि वो हम सब में ज्यादा पढ़ा लिखा है और गालिब का बड़ा फैन है। मैं तो ये गालिब और ज़ौक़ की शायरी के फर्क के बारे में लिख रहा था। नहीं, ये टॉपिक किसने दिया है आपको? खुद ढूंढा है। अरे साहब, जो काम आपके सुपुर्द किया गया वो तो कर लें पहले। आप भी तो कभी खिलाल की जगह कलम इस्तेमाल कर लिया। देखिए 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 साहब, देखिए बात सुने। देखिए हम ये इस इदारे के अफसर आला हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तकरीर खत्म करें और शाम तक हमको दे दें, समझे आप? शाम तक? जी। मैं तो आज हाफ डे की सोच रहा था। अरे तो फुल डे किस दिन बैठते हैं आप? बैठे थे एक दिन। किस दिन बैठे थे हमें भी तो बताएं। कल ज्यादा बात ना करें हमसे। वो तो पहले ही बताइए कि परसों सेमिनार है गालिब पर, दुनिया भर से अदीब आ रहे हैं और हमको शाम तक तकरीर चाहिए। हर सूरत में तकरीर भी चाहिए, मजमून भी चाहिए और शायरी पर मजमून भी चाहिए। समझ गए कि नहीं? आप काहे को हंस रहा है? काहे को हंस रहा है? तंजो मिजाज सर। हाँ तो तंजो मिजाज पर तो मजमून आपको लिखना था ना। वो मैंने लिख दिया है सर। ये दीजिए किधर है? दो। हाँ दे। लेकिन सर वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो आपको दिया जाए। मैं एक ट्राई और करूंगा सर। जी सर, आपकी घंटी बज रही है। घंटी बज रही है। घंटी जाते हैं। सभी फोन हो सकता है। जाइए, टेलीफोन की घंटी बज रही है। मुझे लगता है वहां से आने के बाद गए नहीं है दोबारा। जी हाँ, 24 घंटे गंदा खिलाल करते रहते हैं और ऊपर से कहते हैं कि गोल्डन हैंडशेक करिए। ख्वाजा साहब कम से कम खिलाल तो करते हैं, हम तो वो भी नहीं करते। अच्छा अब तकरीर लिखो, शाम को 6 बजे वजीर साहब को पहुंचानी है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? वाह, शेर तो बहुत अच्छा निकाला। ये मैंने गालिब ने 100 साल पहले निकाला था। गालिब आगरा में पैदा हुए थे। आगरा में तो मीर पैदा हुए थे ना? आगरा बहुत बड़ा है, वहां 2 पैदा हो सकते थे।
اچھا اچھا، میں نے سنا تھا غالب دلی کی پیداوار. غالب کا پاس تھے کیا؟ دلی کی پیداوار سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ اپنا کام کیجئے. آپ کو آتا ہے کیا سوائے اردو کی غلطیاں پکڑنے کے؟ اس کام سے فرصت مل جائے تو کوئی دوسرا کام کروں نا. ساری رات اپنے گھر میں چوہے پکڑتے ہیں اور یہاں دفتر میں دوسروں کی غلطیاں. تم نے دیکھے میں نے چوہے پکڑے؟ تم نے دیکھے میں نے چوہے پکڑے؟ یہ شائستہ بلا وجہ اس ادبی دفتر میں کسی کو بے ادبی کرنے میں مجبور کر رہی ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے شاگرد صاحب کی صحت زبان کسی وقت بھی گر سکتی ہے. دیکھیے کسی وقت بھی یہ غیر مطبوع الفاظ کا ذخیرہ آپ کی بیس پہ الٹ سکتے ہیں. پلیز خاموش رہے، کام کرے کام کرے. لطیف صاحب مجھے غالب پہ مضمون لکھنا ہے، آپ میری مدد کریں پلیز. میرے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائیں. نظر صاحب جی آپ غالب کی شاعری پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں پلیز؟ جی 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 میں ڈال سکتا ہوں. مس شائستہ پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ جو ٹیوب لائٹ ہے نا اسے پہلے ٹھیک کروائیں، پھر اس کی روشنی دیوان غالب پر ڈالیں اور لکھنا شروع کر دیں. کیسا؟ آپ تو مجھے بہت خاندانی لگتے ہیں نظر صاحب. آپ نے تو اپنا مضمون بھی مکمل کر لیا. میں شائستہ دیکھیے بات دراصل یہ مضمون تو میں نے مکمل کر لیا ہے، لیکن غالب کے مجھے صرف 3-4 لطیفے ملے. تو میں نے کیا کیا، یہ جو سردارجیوں کے لطیفے تھے نا وہ سب چن کر میں نے غالب کے نام سے لکھ دیے. مگر اب ڈرتا ہوں کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ. میں تو بس ایک شاعر کو جانتی ہوں، only one. کون؟ عاشق برکتی. میرے کرایہ دار ہیں، ہر مہینے کرائے کے بجائے 1 عدد روبائی تھما دیتے ہیں. ایک کام کریں، آپ عاشق برکتی کا کلام لکھیں اور اس میں سے ان کا نام ہٹا کے غالب لکھ دیں. بھائی واہ واہ واہ، یعنی کیا آئیڈیا دیا ہے بھائی، کمال. واہ واہ، یعنی بات تو کافی ان کی معقول معلوم ہوتی ہے. ایکسکیوز می، مگر یہ عاشق برکتی کا غالب سے کیا تعلق ہے؟ اب غالب امریکی صدر تو ہے نہیں کہ جن کا تعلق سب سے ہو. آپ عاشق برکتی کا نام ہٹا کے غالب لکھ دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. چلیے ختم. کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے اپنی جگہوں پر. یعنی وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا. کیا ہوا؟ ارے صاحب وہ جو افسر ہیں نا جو جشن غالب کے انچارج ہیں وہ آ رہے ہیں شام کو 5 بجے ہمارے دفتر میں. 21 گریڈ کے افسر ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہاں آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقریر لکھیں. ارے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنا کام ختم کر لیں 5 بجے سے پہلے. ناممکن ہے. میں کسی سرکاری افسر کے لیے کیوں تقریر لکھوں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں شاکر صاحب. تقریر تو پہلے ہی لکھتے رہے ہیں نا. پہلے ہم نے تقریر لکھی تھی لیکن وہ غالب پر نہیں تھی. بتائیے، روپیہ گر رہا ہے، تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غدر سے برے حالات ہیں اور جشن غالب منایا جا رہا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاکر صاحب؟ سرکاری دفتر میں اس قسم کے راز افشا کرنے سے 14 برس کی سزا ہو سکتی ہے جیل کی. 13 برس سے ہم آپ کی یہ سزا بھگت رہے ہیں یا ملازمت؟ دیکھیے سنیے گا، آپ لوگ ان کی بات کو کوئی دھیان نہ دیجیے گا. یہ مصنوعی پاگل ہے. تقریر ہم لکھ لیں گے خود لکھ لیں گے. ہاں. تو پھر میں چلوں؟ آپ ہلیں گے نہیں اپنی کرسی سے، بیٹھے رہیں گے 5 بجے تک اسی کرسی میں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے ہیں. 5 بجے تک بیٹھے رہیں گے، لیکن ایک بات سن لیجیے. 5 بجے تک میں اس کرسی میں اتنا غروب ہو چکا ہوں گا. ہو وہ جو ہے نا سرکاری افسر کے لیے وہ پوز مناسب نہیں. صاحب آپ تینوں حضرات ذرا ہمارے کمرے میں چلیں. ہمارے کمرے میں جانا نا تینوں. صاحب آپ ایسا کریں نا کہ شاکر صاحب کو اپنے کمرے میں بلا لیں. ارے بھائی نہیں آتے ہیں ہمارے کمرے میں، تبھی تو آپ کو بھیج رہے ہیں. سنیے آپ کے اکاؤنٹ میں چائے منگوا لیں. چائے
चौराहे का कौन सा मौका है ये कमाल करते हैं। सही सही, जी जी, आइए साहब आइए। एक्सक्यूज मी, मैं अपने मेकअप के सामान साथ रख। हाँ ले जाइए मेकअप का सामान ले जाइए। बड़ा अच्छा है भाई। कैसे? प्लीज 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 हटिए एक मिनट। ख्वाजा साहब की कुर्सी पे मैं बैठ। आधी कुर्सी पे बैठिएगा। क्यों? मुमकिन है ख्वाजा साहब खुद भी आके बैठे। आय हाय साहब, क्या जमाना आ गया है कि 2 मर्दों के बराबर एक औरत। अम्मा तुम क्या कर रहे हो? क्या ख्वाजा साहब का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हो? अजी ख्वाजा साहब ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट खुद ही बनाया है और वैसे भी यानी अंदाजे की उम्र बताने वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अच्छा चलो जाओ चाय लेके आओ। देखिए आज तो मैं आपके लिए चाय ला देता हूँ, हाँ लेकिन कल से मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ बैठूंगा और आप लोग चाय बनाएंगे। भला बताइए वो भी क्या चाय होगी जिसे हम तीनों बनाएंगे? भाई वैसे चोट कर है। हाँ सेमिनार सेमिनार, पूरे इदारे में एक नार है वो भी सेमी। गालिब पे लिखवा रहे हैं। बात सुने, आप लोग सिर्फ अपने मुतालिक बात करें। अच्छा देखिए देखिए, आप हमारी पड़ोसन हैं और पड़ोसन का ख्याल रखना हर मुसलमान का फर्ज है। बिल्कुल। पड़ोसी का पड़ोसी। अच्छा चलिए खैर छोड़िए, आप इसे छोड़िए, मैं लिख दूंगा। अब तुम क्या लिखोगे? तुम्हें अपने दादा के बारे में नहीं मालूम, गालिब पे लिखेंगे। बगैर दादा के भी कोई पैदा होता है? इनसे पूछ लीजिए। ले मुझसे क्या पूछेंगे? अच्छा छोड़िए माजी की बातों को। मुझे एक बात बताएं, इस दफ्तर में कौन कौन सिफारिश पे आए? शाकिर शाकिर। किसकी सिफारिश पर आए? वो अल्ताफ हुसैन हाली की। ये कौन है? हाली मशहूर शायर। अच्छा होंगे कोई। मुझे गालिब के मुतालिक एक बात मालूम है। ये भी बहुत है। उनको आम पसंद है। मेरा और गालिब का बस यही इख्तिलाफ रहा कि उन्हें आम बहुत पसंद थे और मुझे खास बहुत पसंद थे। ओह, बेतुकी बातें। ये क्या लिख रही हैं? ख्वाजा साहब को खत लिख रही हूँ। क्या जबानी कहने की हिम्मत नहीं है? क्या चीज? वही जो लिख रही हैं। प्लीज आप मुझे काम करने दे, डिस्टर्ब मत करें प्लीज। देखिए दफ्तर एक 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 तहजीब तमीज होती है। एक हम आपके अफसर हैं, आप हमारे मातहत हैं, उसका एक रिश्ता होता है। देखिए आप स्टाफ के सामने हमें बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। सुन लिया? ये बताइए आप, क्या आप बात कर रहे हैं या खिलाल कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो खिलाल मत कीजिए। हमारे खिलाल से आपको क्या तकलीफ पहुंचती है? जो खिलाल नहीं करता है उससे इस तकलीफ के बारे में पूछे। न जाने आपकी कुलियात में क्या भरा हुआ है कि आप सारा दिन उगलते रहते हैं। दांतों की कुलियात। दांतों की कुलियात बत्तीसी को कहते हैं। सारा दिन आप गेहूं गंदुम और चने उगलते रहते हैं। आप तो अपनी सफाई कर रहे हैं, दूसरों पे क्या गुजरती है कभी आपने सोचा है? आज तक तो हमसे किसने शिकायत की नहीं। हाँ तो उन लोगों को अपनी नौकरी अजीज है ना। बताइए सारा दिन, अरे पहले तो आप आड़ ले लिया करते थे अपने हाथ की, अब तो आपने वो आड़ भी खत्म कर दी। अब आखिरी मर्तबा आपको समझा देते हैं। देखिए हम आखिरी मर्तबा आपसे कह रहे हैं, आखिरी मर्तबा कह रहे हैं कि ये तकरीर लिख दीजिए। अब इस एहसान को जिंदगी भर न भूलेंगे। और ये कुर्सी जिसके अतिशिशा के दहाने पे आप बैठे हैं ना, इससे उठ के किसी साबित कुर्सी पर बैठ जाइए। और ये जो लालटेन आपने रखी हुई है इसको छुपा दे। तकरीर तो आपने लिखनी थी। हाँ लिखना थी हम, लेकिन पुरानी बातों को भूल जाइए। हमको तकरीर लिखना थी, इसमें थी आ गया। आपको तकरीर लिखना है, इसमें है आ गया। तो जो बात है वो है, आपको तकरीर लिखना है। वतन में जमहूरियत है। अगर वतन में जमहूरियत है तो जमहूरियत का मतलब है कि जिसके दिल में आए काम करे,
जिस के दिल में आए काम न करे, और मैं ये काम नहीं करूंगा, गालिब पर तकरीर नहीं लिखूंगा। शाकिर साहब, हम देखिए, अगर इस दफ्तर में यूनियन होती तो अब तक हम आपकी बुद्धि पकड़कर खुदा की कसम आपको बाहर फेंक चुके। अरे जाइए जाइए, सच कह रहे हैं, आप हमारी बात को मान जाइए। और देखिए, ये अब हम जा रहे हैं अपने कमरे में, वहां से उन तीनों को वापस भेजते हैं। आप फौरन हमारे कमरे में आ जाइए, समझ लीजिए। जाइए जाइए, कमरे में आ जाइएगा। 20-22 मिनट लगेंगे इस कुर्सी में से उगलने के लिए। अरे साहब, अब कुर्सी समेत आ जाए, लेकिन आ जाए हमारे कमरे में। सुन लीजिए इस बात को, याद रखिएगा। ये सभी है, हर वक्त खिलाल करते रहते हैं, कहते हैं तकरीर लिखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा ठिठक गए, थोड़ा रुक गए, घबरा गए, कमरे में बुलवाया है मुझे। जाइए। चले जाएंगे, चले जाएंगे। कम से कम हमें काम करने दें। बताओ, खुद साकिब कुर्सी पे जमे रहते हैं, हमें इस समा जाने वाली कुर्सी में बिठा दिया है। अब इस पोजीशन में कम से कम गालिब पे तो कुछ नहीं लिखा जा सकता। क्या बताऊं, बेचारे ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू हैं। फिलहाल मसूड़े में चुप गया होगा, बैठ जाओ जाके। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा। अरे वो आ गए, आला अफसर इंचार्ज गालिब साहब। सलामुकुम। माफ कीजिए, मैं इसलिए नहीं उठा कि जितनी देर मुझे उठने में लगेगी उतनी देर में कद आदम दीवार खड़ी हो सकती है। माजूर हैं जी नहीं, कुर्सी माजूर है, फंस गया हूँ सर। इस दफ्तर में? जी नहीं, कुर्सी में। सलाम अर्ज करते हैं, हम ख्वाजा हैं। खिलाल खिलाल फेंक दिया तिनकी थी, फेंक दिया हमने। फेंक दिया। आप लोगों को मालूम होगा कि हम यहाँ किस लिए जमा हैं। गालिब की 200 साला हम पैदाइश मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या क्या किया आपने? तंबीह कर दिया हमने। किसको तंबीह की है? आपको नहीं मतलब, हम मर गए हैं का? हमको बात करने दीजिए ना। हमने तंबीह कर दी है, आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा सारा काम। परसों सेमिनार है, वजीर की तकरीर कौन लिख रहा है? वजीर की तकरीर? अरे भाई, हमारे शाकिर साहब लिख रहे हैं ना। अरे बहुत काबिल आदमी है, इतनी मोटी किताब लिख कर रखी है तन्हा अपने हाथ से। गालिब पर जी। सर, यहाँ बैठिए सर। आप इस कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ इस कुर्सी पर बैठता हूँ, काम नहीं करता। इस कुर्सी पे बैठ के आप एक दफा सिर्फ पाकिस्तान लिख के दिखा दीजिए। इस दफ्तर में और कुर्सियां नहीं हैं? अरे साहब हैं ना, जितना स्टाफ है उतनी कुर्सियां हैं। अब जितना स्टाफ है उतनी ही कुर्सियां होंगी ना। तो फिर इस कुर्सी को ठीक क्यों नहीं करवाते? अरे सरकार, इनकी कुर्सी तो 4 महीने में 4 मरतबा टूटी है। न जाने कुर्सी पर किस तरह बैठते हैं। अब कितनी मरतबा ठीक कराएंगे कुर्सी? भाई, हुकूमत ने बहुत सोचा है कि गालिब का जश्न किस तरह से मनाया जाए। मैं आपको एक मशवरा दूं सर? जी जी जी। ऐसा कीजिए, गालिब का मकबरा यहाँ शिफ्ट करवा लीजिए। क्या? गालिब का मकबरा किस तरह शिफ्ट हो सकता है? जब दारुल खिलाफा शिफ्ट हो सकता है तो गालिब का मकबरा तो छोटी सी चीज है। शाकिर साहब कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं आप? तो मत। अरे साहब, ये एक अदबी दफ्तर है। इस अदबी दफ्तर में सियासत पर गुफ्तगू करना मना है, और सियासत और अदब का तो वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं होता है ना। खिलाल का अदब से क्या ताल्लुक है जो 24 घंटे आप खिलाल फरमाते रहते हैं? और मैंने कोई सियासी बात नहीं की है, मशवरा दिया है सिर्फ सरकार को। अरे आइए साहब, हम आइए साहब, हम हो जाइए खुदा के वास्ते। हम आइए, हम आपको मिलवाते हैं। ये हमारी मिस शाइस्ता है। जाइए जाइए जाइए। हमारे दफ्तर की बहुत मोतबर रुकन है
इनका नाम है शाइस्ता। मिस शाइस्ता। जी मिस शाइस्ता। तो ये जो हैं ये मिर्जा गालिब की शायरी पर मजमून लिख रही हैं। ये हमारे नजर साहब हैं। अच्छा। ये इन्होंने गालिब के तंज़ मिज़ाह पर मजमून लिख कर रख लिया। जी, उसकी नोक पलक ठीक कर रहे हैं। जी सर जी। ये हमारे लतीफ साहब हैं। जी इन्होंने वालेकुम सर। वो जो है अपना गालिब साहब की यानी नस्र पर जी, जी। मजमून लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन तकरीर का क्या हुआ? परसों सेमिनार है। सर हमने आपसे अर्ज किया था ना कि वो हमने तंबीह कर दी है। इसको तंबीह कर। अरे भाई आप तो चुप रहिए, बीच में बोले चले जाते हैं। अपनी तंबीह अपने पास अच्छा बस रखिए। थोड़ी देर के लिए शाकिर साहब आपको मिल जाएगा, सारा मवाद मिल जाएगा आपको। और ये शाकिर साहब से तो आप मिल ही चुके हैं ये। जी मेरा नाम शाकिर है। जी। मुझे गालिब पर वजीर साहब के लिए तकरीर लिखना थी। लिखना थी? क्या मतलब? तकरीर फौरन चाहिए। वो वजीर साहब को याद करने में 2 दिन लग जाएंगे। पढ़ना नहीं जानते क्या? वो जबानी कहना है उन्होंने। तो फिर लिखवा क्यों रहे? आप यहाँ कब से मुलाजिम हैं? अजल से। मुझे सारे मज़ामीन चाहिए, मुझे अपने साथ ले जाने हैं। समझ गए? आपकी मेज पर ये लालटेन कहाँ रखूं? लाइट चली जाती है, लालटेन नहीं जाती। और वैसे भी ये लैंप नहीं है। अदबी विरसे में रोशनी की बहुत कमी है। तकरीर का क्या हुआ? अल्लाह जाने। अब्दुल इज्जत इन्हीं एक तो हम सवेरे से इनको 10,000 मरतबा मना कर चुके हैं कि भाई सीटी ना बजाइए, सीटी ना बजाइए, पर मानते नहीं है। आप ही समझा दीजिए इनको। इस उम्र में? मैं बचपन से सीटी बजाता हूँ। ये ली देखिए, मैं ख्वाजा साहब के कमरे में जा रहा हूँ। 15 मिनट की मुझे तकलीफ चाहिए। और ये दरखास्त नहीं, हुक्म है। और ये चाय है। चाय नहीं, मुझे तकरीर चाहिए। तकरीर। जी आइए सर। गालिब कितने चमचे? तकरीर चाहिए, तकरीर। मैंने अब एक फैसला कर लिया। मैं अब इस कुर्सी पर बैठ के नहीं लिखूंगा। एहतजाज ही करना है ना। लीजिए। ये कहाँ बैठ गए आप? ये सरकारी फाइलों पर बैठ गया हूँ, शायद कोई नतीजा बरामद हो जाए। इसीलिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। मैं क्या करूं? तुम ब्याह करो। अभी क्या करूं? मैं तो सिवाय आशिक बरकती के और किसी को नहीं जानती। शाकिर साहब ठीक कह रहे हैं ना। उसका आशिक बरकती का नाम काट के गालिब पर लिख दो बस। ये ठीक है। ना वो भाई फतूत गालिब का क्या हुआ? लिख लिया है, तो कहाँ है? किचन में है। तो लेके आओ। शाकिर साहब को क्या हो गया? सरकारी डांट पड़ी। जोक पढ़िए, जोक। गालिब के जोक पढ़िए। शाकिर साहब, आप वहां बैठे क्या कर रहे हैं? बस सर कुछ पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप वहां बैठे? गालिब से ज्यादा खस्ता हालत में बैठ के तकरीर लिख रहे हैं। ये दफ्तर है, ये क्या तरीका है तकरीर लिखने का? ये तरीका है शोखिए तहरीर का। सर मैं शाइस्ता साहब, वो मजमून आपका कहाँ तक पहुंचा है? हाँ ख्वाजा साहब, जी आपको मालूम है आशिक बरकती कितने पाउंड के पैदा हुए थे? आशिक बरकती। बरकती नहीं सर, आशिक बरकती। आशिक बरकती। नहीं, एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है ये गालिब कितने पाउंड के पैदा हुए थे? अरे हमको क्या मालूम कि बच्चा खाने में मुलाजिम थे हम। ये वजन क्यों लिख रही हैं आप? मीर तकी मीर जो है वो 8 पाउंड के पैदा हुए थे, सौदा 7 पाउंड के पैदा हुए थे, गालिब 15 पाउंड के पैदा हुए थे। 76 साल की उम्र में गालिब ने वफात पाई। और बताइए पाकिस्तान में पाउंड 76 रुपए का रह गया। आप तकरीर लिखे, तकरीर।
ہاں ہم کو تو یہ بتائیے آپ کو وزن لکھنے کے لیے کس نے کہہ دیا؟ ارے بھائی آپ کو تو غالب پہ تقریر لکھنی تھی نا. شاعری میں وزن بہت ضروری ہے. سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے لکھا کیا ہے؟ میں نے مہمانان گرامی آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. پر یہ تو اقبال ہے نا. جانتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کو تو غالب پہ لکھنا تھا. غالب ہی پہ لکھا ہے سر. وزیر صاحب کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے، عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. یعنی وزیر صاحب کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب وہ وزیر نہیں تھے. ہاں، جس باغ میں جاتے تھے چہچہانے لگتے تھے. آگے ہے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. وزیر صاحب جب وزیر نہیں تھے تو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے گھونسلے سے جب جی چاہتا تھا پور سے اڑ جاتے تھے، جب جی چاہتا تھا پور سے آ جاتے تھے. مگر اب وہ آسانیاں کہاں. اور پھر کسی افسر نے کہہ دیا کہ جشن غالب کی صدارت کرے، پھنس گئے. ورنہ کسی سرکاری افسر اور کسی وزیر کا جشن غالب سے کیا تعلق؟ وزیر کا گھونسلے سے کیا تعلق؟ He's a بندہ not a پرندہ. ارے گھونسلے سے مراد گھر ہے سر. تشبیہ. غالب کو مرے ہوئے 200 سال ہو گئے. 200 سال تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ غالب زندہ ہے، غالب زندہ تھے، غالب زندہ ہیں اور غالب زندہ رہیں گے. غالب زندہ ہے اپنی نثر میں، اپنی شاعری میں، ہمارے ذہنوں میں. آپ اپنی تقریر سنائیں. لکھا ہے غالب آگرے میں پیدا ہوئے تھے، یہاں تک لکھا ہے. ایک منٹ. عاشق برکت یہ تو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے. میری تو مضمون شروع ہی غلط ہوا ہے. یہ لیجیے پھر وہی عاشق برکتی. برکتی نہیں سر، برکتی. برکتی عاشق برکتی ہی صحیح صاحب. برکتی ہم کو یہ بتائیں کہ یہ غالب کے مضمون میں عاشق برکتی کہاں سے آ گئے ہیں اور کہاں سے آئے تھے، کیوں پیدا ہوئے تھے، کون ہیں یہ؟ میں عاشق برکتی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. شاعر ہیں. غالب کو نہیں جانتی جبکہ وہ بھی شاعر ہیں. شاکر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ عاشق برکتی پہ مضمون لکھیں اور اس کے بعد عاشق برکتی کا نام کاٹ کے اس کی جگہ غالب لکھ دیں. اب عاشق برکتی جو ہے وہ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، اس لیے میں نے عاشق برکتی کا نام کاٹ کے ان کی جگہ غالب لکھ دیا. گجرانوالہ وہی رہا. اب سنیں میں نے مضمون کیا لکھا ہے. میرے مضمون کے حساب سے غالب گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، 8 پاؤنڈ کے، بچپن میں چودھری فضل الدین کی دکان پہ میڈم نور جہاں کے پنجابی گانے سنتے. آپ کو اس ادبی دفتر میں نوکری کس نے دی؟ سر ہم بتاتے ہیں آپ کو. ہم کو پوچھے نا، ہم جانتے ہیں، بتا دیتے ہیں. سر ایک کوٹا سے آئے ہیں. کوٹا سے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کوٹا سسٹم ہوتا ہے نا، تبھی تو سسٹم سے واقف ہیں. اچھا، تو ان کی سفارش کس نے کی؟ سر اب یہ آپ ہم سے کہاں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں پتا ہے. ارے ہم چھوڑیے، رہنے دیجیے. آپ ایسا کریں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تقریر لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ آپ صرف خواجہ صاحب کو ایڈوائز دیں. اور کوئی شکایت ہے آپ؟ جی ہاں، ایک بہت شدید شکایت ہے مجھے. یہاں پر لیڈیز کا باتھ روم ہی نہیں ہے. سر ہم کا عرض کر رہا سر، ایک بات روم کوئی 8 برس کے بعد بنا تھا. اس میں جب یہ جاتی ہیں اس پہ چپراسی ہمارا لیڈیز کا بورڈ لگا دیتا، باہر آ جاتی ہیں تو اس پہ جینٹس کا بورڈ لگ جاتا. تو ایک ہی ہے کیا اس باتھ روم میں اب نہ لیڈیز کا بورڈ لگے گا نہ جینٹس کا، صرف ایڈوائزر کا بورڈ ہوگا. اب آپ ایسا کریں، خواجہ صاحب کے کمرے میں جا کر بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں جی، اور بس وہاں آرام فرمایا.
थैंक यू। साहब कमाल किया है आपने, क्या अकलमंदी का सबूत दिया, दानिशमंदी का। यानी हमको यहाँ बिठाते हैं कि स्टाफ नजर रखें। जी 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 जी। वो ख्वाजा साहब को भेजे फौरन, जल्दी से। जल्दी से जी भेजिए। जी जी, जी। जाइए, भेजिए जल्दी से। खाया साहब, मिस शाइस्ता आपको बुला रही हैं। अरे कहा है, कहा हमको कहा कल बुला रहे हैं? कौन होती, कौन है बुलाने वाले? अरे अफसर, अरे अफसर कहा है भाई, कहा है? अरे आप लोग कहा को हंस रहे हैं भाई? अरे भाई किसी की भी तरक्की किसी के भी कहने से हो सकती है। जल्दी जाइए, बुला रही हैं। जा रहा है, जा रहा है। जाइए जाइए, अरे शोर कहा को मचा? जाइए, जा रहा बुला रही हैं आपको। सर आप अरे भाई, ये आप लोगों की वजह से मुझे एस्थमा का अटैक जैसे लग रहा है, और आप हैं कि हंस रहे हैं। सर मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ सर कि वो मुझे गालिब का एक जोक याद आ गया सर। अरे भाई कौन सा जोक? सर एक दफा गालिब, एक अंग्रेज और एक सरदार जी आगरे से दिल्ली जा रहे थे हवाई जहाज में। हवाई जहाज से? सर बात दरअसल ये है कि गालिब के 4-5 जोक्स हैं जो सब लोगों ने सुन लिए हैं, तो मैंने मेहनत करके, कोशिश करके कोई 100-150 जोक्स निकाले हैं, वही मैंने मुरतब कर दिए बस। अच्छा आप ये बताएं कि आप भी कोटा सिस्टम से आए क्या? नहीं सर नहीं। सिर्फ गालिब के तंजो मिजाज पर लिखें। जी। अब तो वक्त भी नहीं रहा। तो फिर मैं नहीं लिखूं सर? थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप शायद गालिब के नस्ल में कुछ लिख रहे थे, लिख चुके हैं, कुछ बाकी है? जी लिख चुका हूँ, चपरासी ला रहा है। वो क्या ला रहा है? ये बात ये है कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, गालिब का बड़ा फैन है, बीए पास है और उर्दू में एमए कर रहा है शाम की शिफ्ट में प्राइवेट। अच्छा भाई, तो आपने जो लिखा है आप सुनाएं। मैं सुनाऊं या जिनके लिए लिखा है वो सुनाएंगे? भाई आपने जो लिखा है वो सुनाएं। सर देखिए सर, मुझे शाइस्ता है ना, उन्होंने हमारे दफ्तर पर कब्जा कर लिया है और हमारे साथ निहायत बदतमीजी से पेश आए हैं। हम उनकी एफआईआर करवाएंगे। पहले आप अपनी नाक कटवाइए, ये अदबी दफ्तर है। चलिए सुनाइए। इबला, आपको कभी ये भी ख्याल आता है कि कोई हमारा दोस्त जो गालिब को मिलाता है तो क्या खाता पीता है और क्यों कर जीता? कातिब का नाम गालिब है कि दस्तखत से पहचान, तारीख ऊपर लिखाया हूं और नाम बदलकर मगलूब रख लिया, फिर कहीं फकीरी का रंग इख्तियार करके अपने आप को गालिब अली शाह लिखते हैं। अक्सर निजात का तालिब गालिब तहरीर फरमाते हैं कि गालिब के मकातीब की एक खुसूसियत ये है कि उन्होंने तहरीर में मुकालमे का रंग पैदा किया। एक जगह मिर्जा हातिम अली बेग महर को लिखते हैं कि साहब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बज़बान कलम बातें करो, हिज्र में विसाल के मजे दिया करो। तुफ्ता को लिखते हैं, भाई तुम में मुझ में नामा निगारी काहे को है, मुकालमा है। गुलाम रसूल महर एक जगह मिर्जा की तहरीर के बारे में लिखते हैं कि गालिब के अंदाज की मुमताज तरीन खुसूसियत ये है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं बेतकल्लुफ लिखते हैं। उनके खुतूत का मुताला करते वक्त शायद ही कहीं एहसास हो कि अल्फाज के इंतखाब या मुतालिब की तलाश और जुस्तजू में उन्हें काविश करनी पड़ी। बराबर ये महसूस होता है कि मुतालिब दिलकश अल्फाज का जामा पहनकर उसी तरह बहे चले आ रहे हैं
जिस तरह फव्वारे का मुंह खुल जाए और पानी खुद बखुद उछलता चला। गालिब के खुतूत सरासर आमद। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मजमून मैं पढ़ूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। आपके यहाँ कितने चपरासी हैं? सर इस इदारे में तो फिलहाल एक ही है। आप तकरीर सुनाएं और जो आपने इकबाल के शेर लिखे हैं ना वो निकाल दें। बाकी सिर्फ गालिब की तकरीर रहने दें और आप खड़े होकर सुनाएं जैसे वजीर पढ़ेंगे। जैसे वजीर पढ़ेंगे? जी। कौन से वजीर पढ़ेंगे? भाई ये तो अभी तक तय नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, परसों तक तय हो सकता है। मैं अदीब हूँ, कोई एक्टर नहीं हूँ। मर जाऊंगा वजीर की तरह से नहीं पढ़ सकता। बात करते हैं आप। भाई आप कोशिश तो करें ना। ये कोशिश नहीं, खुदकुशी होगी, खुदकुशी। तकरीर सुना दें, उसके बाद जो मर्जी आए आप करें। ये दिन आपकी ऑफिस का आखिरी दिन। झूठे वादों से हम तंग आ चुके हैं। जो भी आता है झूठे वादे करता है। सच्चे वादे कीजिए, वादा कीजिए कि आज इस दफ्तर में मेरा आखिरी दिन। वादा? पक्का वादा। गालिब पर बादशाहों ने, नवाबों ने और अंग्रेजों ने जो जुल्म किया, उससे कहीं ज्यादा जुल्म इस वक्त कश्मीरियों पर हो रहा है। तालियां, तालियां, तालियां। क्योंकि सेमिनार में भी आप लोग सिर्फ तालियां ही बजाएंगे। भाई नोट करें, नोट करें। अभी हम इस वक्त तालियां बज रही हैं। ये हम नोट करते हैं। ये हमने ये नोट कर लिया जी। गालिब को पैदा हुए 200 बरस हो गए। हमने इन 200 बरस में इतनी तरक्की नहीं की जितनी तरक्की हमने 2 बरस में की। इसकी मिसाल मोटरवे है। मोटरवे? अच्छा अच्छा। मोटरवे है। अगर ये मोटरवे आगरा से दिल्ली तक बन जाता तो गालिब को आगरा से दिल्ली आने जाने में तकलीफ न होती। तालियां। यहाँ भी ताली बजाने के लिए नोट करना है। हाँ कर लेते हैं। हमारे सारे शायर हमारे रुपए की तरह, उनकी गालिब के सामने कोई वैल्यू नहीं। सबके सब की वैल्यू। गालिब अपनी शेरी अलामतों, अशारों और तशबीहात की हद तक मुगल तहजीब का और अपनी वसअत नज़र फिक्र की गहराई और इज़हार मानी की नज़ाकतों के एतबार से हर अहद का अजीम शायर। यहाँ भी ताली बजा कर रहने दें। नहीं, ये सुने, ये हिस्सा निकाल दिया भाई। ये वजीर किस तरह से याद करेंगे? तकरीर नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ भी ताली बजा कर रहने दें। ताली ताली तो आप बजाया करें। सर, आपको अपना वादा याद है कि आज दफ्तर में मेरा आखिरी दिन है? दिन है नहीं था, इसलिए कि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। पहले आप तकरीर सुना के जाएंगे। जी नहीं, पहले आप वजीर बदले। आप किस किस्म के सरकारी अफसर हैं? जी हमारे भी तो सर, हमारे CSP अफसर हैं। ये सेमिनार के बाद तो इंशाअल्लाह एक दिन 22 ग्रेड में तरक्की हो जाएगी ना। जी जी, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आप लोग तालियां बजाएं, क्योंकि हमारी तालियों में हमारी दुआओं से ज्यादा असर। चलिए आप सुनाएं, तकरीर सुनाएं। जी 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 जी। हम गालिब खस्ता को कैसे भूल सकते हैं? हम गालिब खस्ता को कैसे भूल सकते हैं? अच्छी लाइन। हम गालिब खस्ता को कैसे भूल सकते हैं? हमारी इकोनॉमी खस्ता, हमारे हालात खस्ता, खुद मेरी वजारत खस्ता। बस यहाँ तक तो ठीक है। गालिब खस्ता को कैसे भूल सकते हैं, इसके बाद जो है ना सब बकवास। मेरे ख्याल से काट दें उसको। 1 मिनट। जी ख्वाजा साहब। जी जी जी। गालिबन अफसर साहब मेरी तकरीर का मकसद और मफहूम नहीं समझे। यहाँ खस्ता से मुराद है करारी। तो फिर सुनाए। आप लोग हंस क्यों रहे भाई, हंस क्यों रहे? गालिब का जोक याद आ गया सर। क्या जोक याद आ गया? इस वक्त वजीर साहब तकरीर कर रहे हैं। जी 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 जी। ओहो,
भैया आप चाय बना के सबको दीजिए ना। किससे कह रही हैं? सबसे पढ़ा लिखा आदमी उससे कह रही चाय बनाने को? चाय ख्वाजा साहब बनाएंगे। बना ले। चाय बनाइए। अरे हम मर गए हैं क्या? चाय हम बनाएंगे? अभी बनाते हैं। अभी देखिए तो सही, ऐसे ही चाय बना के पिलाएंगे आपको। कितना चीनी कितनी लीजिएगा? 1 ठो के 2 ठो? 2 ठो। 2 ठो चीनी। खाई साहब रहने दीजिए, रहने दीजिए। चाय तो हम ही बनाएंगे। नहीं भाई, ये रह गई क्या? इनसे कहें। जी लतीफ साहब से और इनसे कहिए ये बनाएंगे। जी जी, नजर साहब और लतीफ साहब आप दोनों चाय जी आइए। क्यों हम क्यों बनाए? आप क्यों नहीं बनाती? मैं एडवाइजर हूँ। ये लीजिए। हाँ अरे रहने दीजिए, चाय भी ठंडी हो गई है। 5 मिनट बना के लाता हूँ बस। भाई देखिए, आपने अभी तकरीर भी लिखनी है। अरे उसकी फिक्र ना करें, मैं तकरीर भी लिखता जाऊंगा और चाय भी बनाते जाऊंगा। अभी लाया बस, अभी लाया। बहुत काबिल है, हमें समझा दिया, लिख के लाएंगे, आप परेशान ना होइए। कितने शर्म की बात है। जी है। जाहिल बैठे हुए हैं और पढ़ा लिखा आदमी जो है चाय बना। क्या अच्छी बात की है कि जाहिल बैठे हैं और पढ़ा लिखा आदमी चाय बना रहा है। वाह 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 वाह। सुनिए, गालिब खस्ता को हम कैसे भूल सकते हैं? आपने खस्ता का मतलब बताया करारी, तो फिर गालिब करारी किसको कहते हैं? जी बताइए, बताइए ने, हम आते हैं अभी। आपका पहला सवाल है जिसने मुझे चक्कर में डाल दिया। गालिब खस्ता का मतलब है करारी, और करारी यूं समझ लीजिए इसका मतलब है भुरभुरा। भुरभुरा या बड़बड़ा? भुरभुरा भुरभुरा भुरभुरा। जी हाँ, अच्छा, भुरभुरा। अच्छा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, संजीदा, परेशान हाल, खस्ता हाली। लेकिन हम खस्ता हाल कैसे हो सकते हैं? हम तो तरक्की कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी खस्ता तो हो सकती है लेकिन रंजीदा नहीं हो सकती। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, मैं देखिए, ये शाकिर साहब ने जो तकरीर लिखी है वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लिखें तकरीर। देखिए, हम गलत बयानी से तो काम लेते नहीं है, सारी जिंदगी हमने गलत बयानी से काम नहीं लिया। हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि गालिब हमको एकदम पसंद नहीं है। फ्रॉम दी चाइल्डहुड, हमारा चाइल्डहुड। सर, ये बहुत ही बेईमान आदमी है। जब इनको मीर तकी मीर पे लिखना था तो इन्हें मीर पसंद नहीं थे। जब अल्लामा इकबाल पे लिखना था तो इनको इकबाल पसंद नहीं थे। जब फैज पे लिखना था तो फैज पसंद नहीं थे। आज जब आप गालिब पे लिखने कह रहे हैं तो इनको गालिब पसंद नहीं है। और भाई, तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है शाकिर साहब? देखिए, अगर हमको कुछ पसंद नहीं है तो नहीं है, अगर हमको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। आखिर आप भी तो हमको पसंद नहीं है, तो दफ्तर में तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। सुनिए सर, सुनिए। आइए, अंदर आ जाइए। जी आते हैं। जी देखिए, जी हुकूमत ने डिसाइड किया है जी कि गालिब की गजलों की एक डिस्क बनाई जाए। आप सब लोगों ने मिलकर उसका नाम तजवीज करना। जी उसका नाम आप रख दीजिए गालिब की स्लिप डिस्क। यह बात, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, गालिब को मरे हुए 200 साल हो चुके हैं। अच्छा, गालिब को इस जश्न से क्या फैज हासिल हो? यही तो गालिब को अगर जानना है, उनकी शायरी को, उनकी नस्र को अगर पहचानना है और उनकी शख्सियत को जानना है तो उनका एक मिसाल कि इबादत बर्क की करता हूं और अफसोस हासिल का। यही तो आज से गालिब बंद। कितना अरसा के लिए? मेरा मतलब है आज से ये दफ्तर बंद।